start with pronoun. Pronoun are the words used in place of noun. जब नाउन की जगह किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, या नाउन के शब्द समूहों के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, रवि इज ए क्रिकेटर, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट. दोबारा हमने वर्ड रवि ना यूज करके ही यूज किया है रवि के लिए, सो दिस इज प्रोनाउन. रूबी यू आर ए गुड डॉक्टर. रूबी के लिए हमने यू प्रयोग किया है, रूबी तुम एक अच्छी डॉक्टर हो. आई एम ए डिस्को डांसर सेड मिथुन. मिथुन ने बोला मैं एक डिस्को डांसर हूं. सो दिस वर्ड आई, यू एंड ही इज यूज्ड in place of this noun Ravi, Ruby and Mithun. So they are called pronoun. Now kinds of pronoun. In some grammar books they have given 8 kinds of pronoun. In some they have given 9 kinds of pronoun. Don't get confused. We will explain and we will see all those types of pronoun. Now first of all, personal pronoun that includes I, we, you, he, she, it, they, etc. Again, we will explain it with the help of examples. Reflexive pronoun, myself, himself, herself, yourself, etc. Relative pronoun, which connects the two part of the sentence. जो दो वाक्य समूहों को आपस में जोड़ता है उसको relative बोलते हैं. Who, whose, whom, which, that, etc. Interrogative pronoun, who, whose, whom, which, that, etc. Now you may see the similar words are used here, but with the help of example everything will become clear. Here it is used in the interrogative sense. Now after this we will see the remaining part of the kinds of pronoun. Now comes demonstrative pronoun that includes this, that, these, those. This and that is for singular, these and those for plurals. Distributive pronoun, each, every, either, neither. Indefinite pronoun, one, any, anyone, anything, anybody. Emphatic pronoun, myself, himself, herself, yourself. Don't get confused, we have used the same words in reflexive pronoun also, but when we will see the examples everything will become clear. Now reciprocal pronoun, each other and one another. Now we will see each one of them with the help of examples, so everything will become clear to you. Now we will start with personal pronoun. With the help of example, she reads many magazines to stay informed. वो बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ती है ताकि उसको सारी सूचना रहे. This is your personal pronoun. He goes to a film with his parents. वो अपने माँ बाप के साथ पिक्चर को जाता है. Here again personal pronoun he. He is junior to me by a year. वो मेरे से 1 साल छोटा है. Again this is personal pronoun. You cannot blame him for everything. आप उसको हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं. Here again, this is personal pronoun. She is same height as her sister. वो अपने बहन की जितनी ही लंबी है. Here again, this is personal pronoun. Now reflexive pronoun. I taught myself how to play piano. मैंने खुद पियानो बजाना सीखा. You should take care of yourself. तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए. Reflexive pronoun. He blamed himself for the mistake. उसने खुद को दोषी ठहराया गलती के लिए. Here again this is reflexive pronoun. She enjoyed herself at the party. उसने पार्टी में बहुत आनंद लिया. She के लिए herself, he के लिए himself. We will cook ourselves tonight. आज रात हम खुद खाना बनाएंगे. So here again, this is reflexive pronoun. Now comes the relative pronoun. The house that I lived in was quite small. घर जिसमें मैं रहता था काफी छोटा था. Here this is relative pronoun. ये वाक्य के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है इसलिए इसको relative बोलते हैं. The house that, घर जहाँ I lived in was quite small. जहाँ मैं रहता था, जिसमें मैं रहता था काफी छोटा था. My previous house, मेरा पहले वाला घर, which was quite small, जो काफी छोटा था, was in village, गांव में था. which से हम पार्ट के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. The man who lives next door to me is called Jamil. आदमी जो मेरे बगल में रहता है उसको जमील बोलते हैं या उसका नाम जमील है.
आई एम नॉट श्योर whom दिस बुक बिलोंग्स टू। मैं निश्चित नहीं हूं ये बुक किसकी है। whom दिस बुक बिलोंग्स टू, किसकी बुक है मैं निश्चित नहीं हूं। इज दिस वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या तुम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। सो दीज वर्ड्स who, which, that, whom and what, these are the relative pronoun. Now interrogative pronoun, the same words can be used as interrogative pronoun also when we ask a question with the help of them. What is your favorite color, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। Here this is used as interrogative pronoun. Who is texting you, तुम्हें कौन मैसेज भेज रहा है, फोन से जो मैसेज भेजते हैं उसको टेक्सटिंग बोलते हैं। विच इज जेक फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जेक का सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ, हियर दिस इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाई डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया, हियर दिस इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिससे चीजों को इंगित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। दिस इज डिलीशियस एप्पल, ये सेब बहुत मीठा है। दैट कैट अक्रॉस द स्ट्रीट इज वेरी फ्लफी, वो बिल्ली जो रोड के उस तरफ है बहुत रोएदार है। दिस शूज आर टू टाइट, ये सारे जूते बहुत टाइट हैं। दोज आर माई नेबर्स, वो सारे मेरे पड़ोसी हैं। दीज एंड दोज आर यूज्ड इन द प्लूरल सेंस, दिस एंड दैट इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर सेंस। Now distributive pronoun examples. Each of the students received a certificate. प्रत्येक विद्यार्थी को एक सर्टिफिकेट मिला। Now each is used when referring to more than two people. Each का वहां प्रयोग करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं। Either of the two options will work for our plan. दोनों में से कोई भी विकल्प हमारे योजना में काम करेगा। Neither of the candidates was selected for the job. कोई भी उम्मीदवार, दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ कमिंग बैक टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन, आई लेंट माई फोन टू समवन, आई लेंट माई फोन टू समवन, मैंने किसी को अपना फोन दे दिया। Anyone who can access the oven can bake cake. जो भी ओवन के बारे में जानकारी रखता है केक बना सकता है। Many of the students are absent today. बहुत सारे विद्यार्थी आज absent है, गैर हाजिर है। This is indefinite. This is indefinite pronoun. Nobody works on Sunday. इतवार को कोई काम नहीं करता है। This is indefinite. Everybody should जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन, सब लोग आराम करें और मजे लें। आई थिंक आई हर्ड समथिंग, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना है। दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीथिंग, मोस्ट, एवरीथिंग, एनी, दीज आर ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने खुद काम पूरा किया। आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आएगा, दिस इज एम्फेटिक। सी हर सेल्फ, उसने खुद, सी के बाद तुरंत ये वर्ड आएगा एम्फेटिक। सी हर सेल्फ ट्रेवल्ड बैक टू द कॉलेज, वो खुद ही वापस कॉलेज गई। वी आवर सेल्फ मेड फूड विथ होम इंग्रेडिएंट्स, हमने खुद ने अपना खाना बनाया घर के सामान से, घर की चीजों से। यू योर सेल्फ, यू के तुरंत बाद योर सेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, तुम खुद ही हमें स्थिति के बारे में बता सकते हो। ही हिमसेल्फ बिल्ड द एंटायर मॉडल, उसने खुद ही पूरा मॉडल बनाया। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद अपनी गलती मानी। नाउ द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पीटर एंड मैरी हेल्प ईच अदर, पीटर और मैरी ने एक दूसरे की मदद की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी सेंट वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स, हम एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड्स भेजते हैं। टॉम एंड जेरी गेव ईच अदर चॉकलेट फॉर क्रिसमस, टॉम और हेरी ने एक दूसरे को क्रिसमस के लिए चॉकलेट दिया।
रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर। रोमियो और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते थे। द कोच स्पीक टू ईच अदर अबाउट स्ट्रेटेजी। कोच ने एक दूसरे से बात की योजना के बारे में। नाउ ईच अदर is used for two people or things. One another is used for more than two people or things. So this way today we have completed pronoun. In the next video we will discuss the adjective. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. I wish you all the best. Continue watching remaining part of the parts of speech. Thank you.